Welcome back, viewers. Let's take a look at what's making the headlines at this hour. In the latest update in the South Kolkata gang rape case, the victim's statement will be recorded today at the Alipur court shortly. A hockey stick was recovered by the Kolkata police from the crime scene at the South Kolkata Law College. Actor Shefali Jariwala died on Friday night at a residence. The Mumbai police officer recorded the statement of Shefali Jariwala's husband Parag Tyagi at their home. So far, statements from 4 individuals have been recorded. Post-mortem details are still awaited. Back-to-back landslides have thrown the Char Dham Yatra into disarray, with routes to both the Kedarnath and Badrinath facing severe disruptions due to heavy rainfall and falling debris. After extending help to the lakhs of devotees at the Mahakumbh Mela in Prayagraj earlier this year, the Adani Group is now offering voluntarily services for devotees and pilgrims at world-famous Rath Yatra in Odisha's Puri. India has, in a strongly worded statement, rejected a supplemental award by an illegal court of arbitration set up supposedly over the 1960 Indus Water Treaty. The Chief Justice of India, B.R. Gawai, once again cautioned against judicial overreach, stressing that while judicial activism was bound to stay, it cannot be converted into judicial advertising or judicial terrorism. Iranian Foreign Minister Abbas Araghchi condemned the disrespectful and unacceptable comments from the US President Donald Trump after the US President claimed to have saved Iran's Ayatollah Ali Khamenei from an ugly death. US President Donald Trump has said that July 9th deadline for reimposing broad US tariffs was flexible, suggesting it could change based on how trade talks progress. US President Donald Trump has announced through Truth Social that he is terminating all the discussions on trade with Canada with immediate effect. The reason for his tirade this time is digital services tax. Viewers, officers from the Mumbai's Juhu police station reached the Cooper Hospital's mortuary, where Shefali Jariwala's body was brought for post-mortem. Police have arrived for the security arrangements, and in the visuals we can also see in just from now on how exactly the post-mortem body of Shefali Jariwala has been brought. Joining me live on the broadcast is Shahid Ansari for further updates. Shahid, what are you picking up as the post-mortem report has been awaited for देखिए अभी भी जो जानकारी मिली है उस जानकारी के मुताबिक जो है मुंबई पुलिस कूपर हॉस्पिटल में जो है जहां मर्क्यूरी रूम है वहां पहुंची है। पहले तो उनकी बॉडी का उन्होंने मुआयना किया है। अब चूंकि असल जो मौत की वजह है वो पोस्टमार्टम बहुत मायने रखती है, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट, क्योंकि इससे पहले प्राथमिक जानकारी में जो बातें सामने आई है उसमें शेफाली जरीवाला की मौत का जो कारण है, जो मौत का रीजन बताया गया है वो हार्ट अटैक का है। हालांकि जो है जब ये उन्हें हार्ट अटैक आया है तो उस दौरान रात के तकरीबन 10 बजे के आसपास उनके सीने में जो है बहुत तेज दर्द उठी और वो दर्द ऐसी जो बर्दाश्त के बाहर थी। उसके बाद उन्हें ब्लू हिल हॉस्पिटल लेके जाने की कोशिश की गई, लेकिन दम तोड़ दिया। डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। अब चूंकि होता यह है कि अगर वो हॉस्पिटल में जाकर ट्रीटमेंट के बाद अगर उनकी मौत होती तो शायद हो सकता है कि पोस्टमार्टम नहीं होता और पुलिस अपनी मौत का जो है लेकिन असल में यहाँ पे यह हुआ है कि हॉस्पिटल पहुंचने से पहले ही उन्होंने दम तोड़ दिया, जिसके बाद हॉस्पिटल प्रशासन ने जो है पुलिस को इन्फॉर्म किया और अब जो है कुछ ही देर में जो है पोस्टमार्टम की प्रक्रिया पूरी की जाएगी, जिसके बाद जो है मौत का असल सबब जो है कारण क्या है वो पता चल पाएगा। हालांकि प्राथमिक जानकारी में पुलिस ने यह बताया है कि उन्होंने उनकी जो है हार्ट अटैक से उनकी मौत हुई है, लेकिन सही वजह तब हमें पता चल पाएगी जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आएगी। जी, All right, Shahid, in fact, continue to stay with us, as right now the family and relatives of
Shefali Jariwala began arriving at the Cooper Hospital in Mumbai, where her body was brought for post-mortem. Shefali Jariwala's father Satish Jariwala and her sister Shivani arrived at Cooper Hospital. All right, Shahid, who else is in fact coming at this point of time to pay their respects at this tragic incident at the residence of Shefali Jariwala? हॉस्पिटल रहना इसलिए जरूरी है कि चाहते हैं कि जितनी जल्दी पोस्टमार्टम की प्रक्रिया पूरी की जाए, फौरन जो है उन्हें लेकर अंतिम संस्कार की प्रक्रिया पूरी करें। लेकिन चूंकि नियम कायदे के मुताबिक जो है 3 से 4 घंटे जो है पोस्टमार्टम में जा सकते हैं और शाम तक जो है उनके शव जो है उनके परिवार को उनके हवाले पुलिस की एनओसी मिलने के बाद की जा सकती है। अब चूंकि जैसे ही ये खबर बॉलीवुड में ही नहीं बल्कि चूंकि शेफाली जरीवाला का जो मिजाज जो नेचर रहा है, उस वजह से हमेशा से आप देखिए कि जिस दौर में कांटा लगा उनका जो सॉन्ग रहा है, उस दौर में जो है किसी भी तरह के जो है वायरल या सोशल साइट का उतना वजूद नहीं था। उसके बावजूद भी रातों रात वो एक्टर जो है शोहरत कमा ली। उसके बाद भी उन्होंने देखिए कि आप कभी भी वो हमेशा से नॉन कंट्रोवर्शियल रही है। उनके वॉचमैन से लेकर उनकी सोसाइटी और बॉलीवुड हर एक जो है उनकी तारीफ ही कर रहा है, क्योंकि बहुत ही मिलनसार रही, बहुत ही जो है नरम मिजाज रही है। यही वजह रही है जिससे उनकी जो त्यागी से जो उनकी दूसरी शादी भी जो हुई है, इसमें भी उन्होंने ये बात बताई है कि त्यागी ने खुद अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि उनकी इसी वजह से जो है उनकी दोस्ती हुई, और क्योंकि वो बहुत ही मिलनसार और नरम मिजाज रही है। अब क्योंकि जब ये मौत हुई है तो इनका भी, त्यागी का भी बयान दर्ज किया गया है, उनके पति का, उसके साथ साथ 3 और लोगों का बयान दर्ज किया गया है, जिनमें उनके कुक, घर के मेट और उसके साथ साथ वॉचमैन, ये सारे लोगों ने पुलिस को बयान दर्ज किया है। लेकिन मौत का जो आपको मैंने बता दिया कि लोग अभी जो परिवार के लोग हैं वो भी जो है अभी हॉस्पिटल इसलिए पहुंच रहे हैं कि उनके शव को जो है कितनी जल्दी हो सके पोस्टमार्टम हो जाए और उसके बाद फौरन उनका परिवार जो है उनका शव लेकर उनके घर पहुंचे और उसके बाद वहां से अंतिम संस्कार की जो अंतिम विधि है वो सारी चीजें करें। जी। All right, Shahid, continue to be with us on the telecast, where in a tragic coincidence, Shefali's last post on X was a tribute to her Big Boss 13 co-contestant, Siddharth Shukla. On his death anniversary, Shefali shared a photo where the two can be seen hugging during their time on the show and wrote, "Thinking of you today." The post has gone viral in the light of the news of her death. All right, Shahid, there is also this post that is garnering a lot of attention ever since the tragic news of her demise has come forward, and in a very unfortunate manner, Siddharth Shukla also had suffered cardiac arrest. शेफाली और सिद्धार्थ के जो बिग बॉस में देखिए, सबसे पहले शेफाली की जो शोहरत में इजाफा हुआ वो तो उनकी जो एल्बम कांटा लगा रहा है, लेकिन उसके बाद असल में उनको जो लोगों ने जो है वो किया, जो सबसे ज्यादा पसंद किया है, वो बिग बॉस के बाद किया। बिग बॉस में भी जो है सिद्धार्थ और शेफाली के जो मरासिम, जो ताल्लुकात रहे हैं, आप देखिए कि वो बहुत अच्छे रहे हैं। सिद्धार्थ से उनके रिलेशन बहुत अच्छे संबंध रहे हैं, और उसके बाद जो है बिग बॉस के बाद जो उनको जो शोहरत में उनके जो इजाफा हुआ है, आज तक वो इजाफा होते ही नजर आया। शेफाली सिर्फ यही नहीं, सिर्फ बिग बॉस या इस तरह के एल्बम में ही नहीं, बल्कि वो ऐसा भी रहा है कि मुंबई में देखिए कि गणेश उत्सव या इस तरह के जो दही हांडी के फेस्टिवल वगैरह भी रहे, तो शेफाली को जब जिस भी मंडल ने उन्हें इनवाइट किया, वो हमेशा उस जगह पहुंची। शेफाली ने जो है अपने फेसबुक पोस्ट पर सिद्धार्थ के बारे में उन लम्हों को जो है उन्होंने जो है शेयर किया। फिर आप देखिए कि 3 दिन पहले भी शेफाली ने अपनी कुछ फोटो शेयर की। 42 साल की ये एक्ट्रेस जो है किसी को गुमान में भी नहीं था कि वो हार्ट का अटैक आने के बाद जो है उनकी मौत हो जाएगी, किसी ने गुमान नहीं किया था। क्योंकि शेफाली को आप देखिए तो 42 साल की उम्र में भी जो है अक्सर कि वो जो है फिटनेस को लेकर बात करती थी, योगा को लेकर बात करती थी, वो अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखती थी और वो बहुत फिट नजर आती थी। तो 3 दिन पहले की भी पोस्ट आप देखिए, जो सोसाइटी में भी जो है 2 से 3 दिन पहले लोगों ने देखा, किसी को गुमान नहीं था कि शेफाली जो है हालत का वो नहीं, हंसमुख मिजाज की रही है, बावजूद उसके वो हार्ट अटैक उनको आ गया है। अब आप बात करें, चूंकि सारी चीजें निर्भर जो है देखिए पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर करती है, वहीं से असल सबब जो है वहीं से पता चल पाएगा। All right, in fact. Now, Shahid, continue to be there with us live on the telecast. In a crucial development in this case, the post-mortem examination has just begun. Medical experts will now determine the exact cause and the time of death, which could play a key role in the ongoing investigation. All right, Shahid, more details, in fact, as you can track these latest developments coming in.
हाँ देखिए, अब चूंकि ये सारी चीजें जो भी होंगी ये पुलिस की मौजूदगी में होंगी, और आपको मैं बताऊं कि पोस्टमार्टम का भी जो है वीडियोग्राफी होगी, और इसके साथ साथ जो है वहां पे पुलिस की मौजूदगी भी रहेगी, उनकी मौजूदगी में ये सारी चीजें होंगी। क्योंकि कल के कभी ये सवालात ना उठे कि भाई डेथ हो गई है तो डेथ का असल वजह हार्ट अटैक नहीं कुछ और रही है, तो इसलिए मुंबई पुलिस भी जो है, चूंकि भी हॉस्पिटल के पास कोई पहुंच के बाहर से अगर किसी की मौत हो जाती है, तो ये देखिए कानूनी प्रक्रिया में फिर उसको शव को जो है पोस्टमार्टम होना ही है। अब इसमें भी जो है शेफाली का भी जो है पोस्टमार्टम होगा, इस दौरान पुलिस की मौजूदगी रहेगी, वीडियो रिकॉर्डिंग होगी, और उसके बाद जो है पुलिस और हॉस्पिटल के एनओसी के बाद उस परिवार को जो है उनके शव उनको हैंडओवर किया जाएगा, और इस दौरान जो है पुलिस की जो रिपोर्ट रहेगी या पोस्टमार्टम की जो रिपोर्ट रहेगी उसकी बुनियाद पर पुलिस की रिपोर्ट रहेगी, और उसके बाद ही जो है फिर ये सारी चीजें होंगी। हालांकि पुलिस अपने तरीके से जो है हर एंगल से तफ्तीश कर रही है कि क्या वाकई जो है हार्ट अटैक है या कहीं कुछ और तो नहीं है, क्योंकि आप देखिए कि किसी भी इन्वेस्टिगेशन का ये पहलू होता है, अगर कोई सुसाइड केस भी होता है तो पुलिस उसमें मर्डर के एंगल से जांच करती है। हालांकि शेफाली को जो है हार्ट अटैक आया है, प्राथमिक जानकारी में बात सामने आई है। अब पोस्टमार्टम जब हो जाएगा तो उसके बाद जो है सारी चीजें जो है बहुत ज्यादा नहीं, 4 से 5 घंटे में साफ हो जाएंगी। जी All right, in fact, as more details could be tracked very soon. Now, viewers, in fact, it's time to shift our focus to other developments. A 19-year-old man, Yash, has been stabbed to death in the Rani Garden area under the Geeta Colony police station of Delhi's Shahadra district. In the latest update, the Delhi police has arrested the 3 accused in relation with the murder, out of which 2 are identified as Aman, Lucky, and 1 is a juvenile. All the 3 accused identified as Aman, Lucky, and in fact other person named as Rihan are arrested in connection with the murder of 19-year-old Delhi teen identified as Yash. According to the police, information was received from Lakshminagar Hospital that a boy was brought dead after a stab injury on the lower back. And upon acting on the call very swiftly, Delhi police began the investigation and started probing the matter from thereafter. Now, DCP of Shahadra district also has shared more details. Meanwhile, my colleague has spoken to the family of the victim. Let's listen in. इन्वेस्टिगेशन में 3 जो अक्यूज थे उनको अरेस्ट किया गया है। आप सेटिस्फाइड है इन्वेस्टिगेशन से या और भी कुछ डिमांडें हैं? सर मेरी बिल्कुल एक ही डिमांड है, बिल्कुल एक ही डिमांड है कि सीबीआई इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और उस लड़की के परिवार वालों को बुलाना चाहिए, साथ में उस लड़की को भी बुलाना चाहिए, उसके परिवार वालों को बुलाना चाहिए। जो लड़कियां और जो जिनकी माँ बाप मुन्नी, साहिबा की मम्मी, गफ्फार जिसके पिता का नाम है, ये सारे के सारे फैक्ट्री में काम कर चुके हैं और फैक्ट्री में आके इन्होंने स्पेशल धमकी दी थी यश के फादर को कि तुम्हारे लड़के को मरवा देंगे, और आज मेरा लड़का इस दुनिया में नहीं रहा। कल रात को उन्होंने इस घटना को अंजाम दिया। एक माइनर स्कफल बताया जा रहा है या माइनर रोड रेज बताया जा रहा है, उसके वजह से ये एक इंसिडेंट हुआ है। क्या आप उस चीज़ से अग्री करते हो या उस चीज़ से नहीं अग्री करते? सर मैं बिल्कुल डिसएग्री करती हूँ इस चीज़ को। मैं बिल्कुल भी एग्री नहीं करूँगी इस चीज़ को कि स्कूटी टच होने पर कोई किसी की इतनी निर्मम हत्या कर सकता है। बिल्कुल भी एग्री नहीं करूँगी इस चीज़ को। ये बिल्कुल साजिश है। आपके हिसाब से प्रोबेबल या रियल रीज़न क्या है? रियल रीज़न यही है, लड़की का जो हिसाब किताब है, लड़की को लड़के ने मना किया, मेरे बेटे ने मना किया कि किसी एक के साथ ही रहो, या तो दूसरों के साथ रहो या सिर्फ मेरे साथ रहो। हमें कोई इतराज़ नहीं था इस चीज़ से। जब पुलिस को आपने ये बयान दिया या ये स्टेटमेंट दिया, ये चीज़ बताया, तो इसमें पुलिस का रिएक्शन क्या था? पुलिस ने क्या बताया? पुलिस वाले साफ सीधी सी बात ये कह रहे हैं कि सिर्फ एक ये रोड रेज केस है, इससे ज़्यादा इसका कुछ नहीं है। क्योंकि जो लड़का एक आम पब्लिक के अंदर 5 मर्डर करके घूम रहा है, जिस बात के बारे में पुलिस वालों ने भी ये एग्री किया है कि उसको सिर्फ 4 महीने की सज़ा होती है और वो छूट कर चला जाता है, ठीक है, तो ये बात पुलिस वालों को अच्छी तरीके से पता है कि वो मर्डर ऐसे आम पब्लिक के बीच में घूम रहा है। पुलिस का अभी क्या स्टेटमेंट है? वो क्या बता रहे कि उन जो 3 अक्यूज है उन पे इंटरोगेशन करेंगे ये बिहाफ पे कि ये कोई रोड रेज नहीं था, बट कि एक प्री मेडिटेटेड सोची समझी हुई मर्डर थी? सर ये बिल्कुल सोची हुई समझी हुई साजिश है। मेरे बच्चे को मारा ही गया है क्योंकि मेरा बच्चा बहुत भोला है, बिकॉज वो किसी से बात नहीं करता, किसी से लड़ाई नहीं करता। ये उसकी सारी पहले से प्लानिंग थी, बिकॉज लड़की के परिवार वालों ने फैक्ट्री में आकर धमकी दी थी, पर हमें बिल्कुल भी ये इस चीज़ का आइडिया नहीं था कि वो इस तरीके से उसको मार डालेंगे, क्योंकि उसकी फैमिली
हमारे फैक्ट्री में काम करने आती थी, 2-2.5 साल काम किया। उसके पिताजी ने भी काम किया, जिसका नाम गफ्फार है, उसकी माता ने भी काम किया। लड़की का नाम साहिबा है, उसने भी काम किया। मुन्नी और गुल्लो, गुल्लो जो कि सबसे छोटी लड़की है, जिसका अफेयर मेरे लड़के से उसकी माँ ने ज़बरदस्ती करवाया, उसको डबल क्रॉस करने की कोशिश करी। दूसरी अपनी गुल्लो लड़की को लक्की के साथ घूमते हुए देखा, जबकि कुछ भी नहीं कहा। लेकिन यही बात मेरे बेटे यश ने देखी, तो उससे ये चीज़ बर्दाश्त नहीं हुई। उसने उसको बोला कि भाई तुम उसके साथ रहो या मेरे साथ रहो, पर लड़की नहीं मानी। लड़की के परिवार वालों को पता चला, लड़की के परिवार वालों ने ऑब्जेक्शन उठाया। लड़की के परिवार वालों ने आके फैक्ट्री में धमकी दी और मेरे बेटे को इस दुनिया से हटा दिया। बहुत बहुत शुक्रिया मैम हमसे बात करने के लिए। सो यस व्यूअर्स, a pretty disheartening incident, a shocking incident rather, where we just spoke to the local MLA, we spoke to the father and the mother of the boy who unfortunately lost their life because of an incident, and we've spoken to them exclusively for NewsX. This is me, Brian Thomas, signing out with camera person Ankush for NewsX. We are also joined by the boy's father with us here. सर, इन्वेस्टिगेशन से खुश है आप, संतुष्ट है? क्योंकि 3 लोगों को अरेस्ट भी कर लिया गया है। जो इन्वेस्टिगेशन चल रही है उससे आप सेटिस्फाइड है? 3 लोगों को अरेस्ट किया है, वो ठीक किया है, लेकिन वो रोड रेज का जो बता रहा है वो गलत है, वो लड़की का मैटर है। जो अभी एक स्कूटी में एक छोटा स्कफल हुआ, उसके वजह से रोड रेज के वजह वो तो वो जबरदस्ती वो बना रहा है, वो जबरदस्ती भिड़ा है, वो स्कूटी से तो जबरदस्ती लगा उससे। तो आपके हिसाब से क्या रियल मुद्दा है? क्योंकि हमने विधायक जी से भी बात किया, उन्होंने बताया आप लोगों से बात करके लड़की का है, वो जो डबल क्रॉस कर रही थी लड़की, उस लड़के से भी अफेयर था और मेरे लड़के से भी अफेयर था उसका। तो वो उसके माँ बाप को भी वो बोला था, तो उसने लड़के ने तो उस चक्कर में उसने उसको मारा है। और जब आपने पुलिस को ये बयान दिया है, पुलिस ने उसके सुन के क्या एक्ट किया, क्या ऐसा निष्कर्ष निकाला? कुछ नहीं सुना, उन्होंने कहा ये उससे लड़के से पूछा आज क्या हुआ, बस वही पुलिस वालों ने लिखा कि आज ऐसे हुआ। जो भतीजा साथ में था उससे ही पूछा उन्होंने, वो पीछे बैठा हुआ था, लड़का गाड़ी चला रहा था, तो जो उसके सामने हुआ था वो बताया बस उसने, तो बाकी मैटर लड़की का था। और मेरा आखिरी सवाल ये रहेगा, डिमांड क्या रहेगी सरकार से, डिमांड क्या रहेगी इन्वेस्टिगेशन से? क्या एज अ फादर क्या डिमांड? डिमांड तो यही है कि अब छूटे नहीं, वो अब वो फिर छूटते हैं, वो किसी न किसी को मारते हैं। एक थोड़ी मारा उन्होंने, कई मार रखे हैं यहीं पे, कई लोगों को मारा है और धमकाते रहते हैं छोटे बच्चों को। 17-18 साल के जो लड़के स्कूल वाले होते हैं उनको मारपीट करते हैं उनके साथ, क्योंकि डिमांड यही रहेगी कि कड़ी से कड़ी सजा मिले, छूटे ना वो, नहीं तो फिर किसी को मारेंगे वो। बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। सो यस व्यूअर्स, दैट वाज द फादर वी स्पोक टू एक्सक्लूसिवली फॉर NewsX एंड इंडिया, joined by Aman Sharma who was there with the boy who unfortunately lost their life. अमन जी, आप वहाँ थे, कब की घटना है, कब हुआ था, क्या हुआ था? मेरे को वो गैरेज से लेने आया था, हम घर की तरफ जा रहे थे, हमने अम्बेडकर पार्क शिव मंदिर से लेफ्ट लिया, तो यश गाड़ी चला रहा था, 2 लड़के सामने से आ रहे थे, एक लड़के को साइड मिरर लगा, वो खुद ही आया था, उसकी इंटेंशन ही ऐसी थी हमें रोकने की, तो उसको साइड मिरर लगा, तो उसने हमें गाली दी, हमने रोका, तूने गाली क्यों दी? तो उसने सीधा गन निकाली और हमारे सर पे रख दी, तो हमने उससे थोड़ी सी मुठभेड़ की, गन पकड़ने की कोशिश करी, तो दूसरा लड़का भागा, वो 1 मिनट में 3 से 4 लड़के लेके आया 1 मिनट के अंदर, और उनके हाथ में चक्कू था, तो यश ने कहा भागने को, हम दोनों भागे, यश गिरा, उन्होंने उसको चक्कू मारा, यश दोबारा भागा, वो 50 मीटर में कम से कम मेरे साथ भागा, कह रहा मेरे को चक्कू लगा, और वो गिर गया। फिर पब्लिक ने हमें ऑटो कराया, हम गए हॉस्पिटल में, जाते जाते उसकी मृत्यु हो गई। और जैसे पेरेंट्स बता रहे हैं कि ये कोई माइनर स्कफल या रोड रेज नहीं था, पर एक लव ट्रायंगल था या कुछ था? ट्रायंगल था और प्लानिंग करके मारा गया है, क्योंकि गाड़ी रुकने पे कोई ऐसे गन लेके पहले से तैयार नहीं होता, क्योंकि वो लड़का हमेशा एक ही रास्ते से आता था, वो वहीं से आ रहा था, पर 1 मिनट में 3 लड़के चक्कू लेके कैसे आ जाएंगे? और आप यश के दोस्त हैं? मैं भाई ताऊ का लड़का हूँ, उसका कज़न हूँ। आप उनके कज़न हैं, तो यश ने कभी इसके बारे में बताया था, ये लड़की के बारे में, या आपको कोई आभास था या पता था कि ऐसा कुछ है या ऐसा कुछ नहीं? ऐसा बताया था, ये 1 महीने पहले की बात थी। यश उस लड़की के साथ रिलेशन में था, तो यश जिस फैक्ट्री में काम सीख रहा था, तो उसमें उसने एक लड़के के साथ पकड़ा था जिसका नाम लक्की है, तो यश ने उस लड़की को चाटा मारा था, तो उसकी फैमिली वाले आए थे घर पे धमकी देने कि वो एक के साथ घूमे चाहे 100 के साथ घूमे, तुम्हें कोई मतलब नहीं, तुमने हमारी लड़की मारी है, तो जो जिस लड़के के चक्कर में मारी है वही लड़का तुम्हें मारेगा, धमकी दे के गई थी, और उस वारदात में वो लड़का शामिल था लक्की। इन्वेस्टिगेशन की बात करें, जो 3 अक्यूज थे उनको अरेस्ट किया गया है,
अगर मैं आपसे पूछूं इन्वेस्टिगेशन से आप संतुष्ट है, आप सेटिस्फाइड है या नहीं? अभी सेटिस्फाई नहीं है, ना हमें कोई मिलाया गया है, ना कुछ हमें बताया गया है कि कितने पकड़े गए कितने नहीं। वो लड़के 5 थे और उसमें से एक नाबालिग है जो ये सारे अपराधी हैं, ये सारे मर्डर कर चुके हैं। आज से 6-7 महीने पहले इन्होंने मर्डर करा था और 15 दिन में छूट के आ गए थे। और ये ऐसे यहाँ पर गुंडागर्दी करते हैं, गन लेके घूमते हैं, सरेआम चक्कू लेके घूमते हैं। सरकार का कोई एक्शन वगैरह कुछ भी नहीं है, ना कुछ कर रही, ना यहाँ एक भी पुलिस वाला आया सुबह से अब तक। ये अभी आया आपके सामने, वरना सुबह से कुछ तक पूछा नहीं। थाने में मैं चक्कर कटवाया 2 बजे तक रात। मेरा लास्ट सवाल ये रहेगा, मैंने पेरेंट्स से भी यही पूछा, मैं आपसे भी पूछूंगा, डिमांड क्या रहेगी सरकार से, डिमांड क्या रहेगी पुलिस? उसको फांसी दी जाए सारे लड़कों को। ये लड़के आए दिन गुंडा करते हैं, इनके ऊपर बहुत क्राइम सीन है, इन्होंने बहुत मर्डर करे हैं, 3-4 मर्डर करे इसी साल में। ये सरेआम गोलियां चलाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। सो यस व्यूअर्स, सो वी स्पोक टू द पर्सन, रादर हिज कजन who was with him, with the boy Yash, and he saw everything happen first hand, and this was our take on this grave incident that happened at the national capital. This is me, Brian Anthony Thomas, signing off with camera person Ankush for News. Well, on that, in fact, as it's a local feud, my colleague Brian Thomas has also spoken to the local MLA, to the BJP MLA Anil Goel in relation to this case, who has also given out a statement. Let's now track that and take a look. Dr. Anil Goel, who is also the Vidhayak and the MLA of this very constituency. Sir, मेरा सवाल पहला ये रहेगा, ये जो इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, इस पे 3 लोगों अरेस्ट भी हो गए हैं, 3 अरेस्ट हो गए, उस पे क्या कहना चाहते हैं? देखिए, दिल्ली में ये एक हमने पिछली आपदा सरकार की लिगेसी मिली है, ये अपराधियों को संरक्षण देना, वोट बैंक बनाना। ये अब दिल्ली की सरकार, रेखा गुप्ता जी की सरकार है, मोदी जी के, अमित शाह जी के निर्देशन की सरकार है, और ये रातों रात ये अपराधी पकड़े गए हैं। ये अपराध हुआ और रातों रात पकड़ लिए गए। ये सिर्फ अपराधी 3 ही नहीं है, और भी 5-6 2-3 और हैं। इसके अलावा यहाँ पर ये भी ड्रग का मैनेज भी आ रहा है कि इस रानी गार्डन में, यहाँ आसपास के नाले के किनारे अवैध झुग्गियों में, उसको भी पकड़ा जाएगा। अवैध बांग्लादेशियों का भी आ रहा है, और यहाँ के जो लोकल जो भी अपराध में लिप्त होगा, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ, ये दिल्ली में रेखा गुप्ता जी की सरकार है, वो नेक्सस भी तोड़ा जाएगा। और इस बार अपराधियों को जो सज़ा मिलनी चाहिए, जो माइनर हो या मेजर हो, वो मिलकर रहेगी। ये मेरा और मेरी रेखा गुप्ता जी की सरकार का संकल्प है। सर, एक माइनर स्कफल हुआ था, स्कूटी का एक इंसिडेंट था, स्कूटी में एक धक्का लगा था, उसकी वजह से ये एक इंसिडेंट हुआ। रोड रेज नहीं है ना, स्कूटी का है। ये अभी आप हमारे साथ राखी जी हैं, यश की मदन है, तो अश्विनी जी हैं। ये और भी एंगल है, कोई एक लव ट्रायंगल भी है, एक लड़की का भी एंगल है, वो उनकी माताजी ने अभी हमें बताया। और इसके अलावा ये जो गए हैं, ये 3-4 मर्डर पहले भी कर चुके हैं। ये कोई रोड रेज नहीं है, ये आदतन अपराधी हैं, आदतन कातिल हैं। इनको पता रहना चाहिए कि दिल्ली में अब भाजपा की सरकार है, दिल्ली में अब एक कंसर्न है, सेंसिटिव सरकार है, जो इनको उचित कार्रवाई करेगी। जेल में भी आगे भी इसको देखेगी कि इनके खिलाफ उचित कोर्ट भी डिसीजन दे। ये नहीं है कि 2-3 मर्डर करके फिर से वापस आ गए, ऐसा नहीं चलेगा अब। और सर, लास्ट मेरा सवाल रहेगा कि लॉ एंड ऑर्डर पे भी एक सवाल उठता नजर आ रहा है, एक डबल मर्डर का भी केस नजर आया है, तो उस पे आपका क्या कहना है अबाउट द लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इन द नेशनल कैपिटल? नहीं, जैसे मैंने कहा, अपराध जो हो रहे हैं, ये हमारी एक लिगेसी मिली है हमको पिछली आपदा सरकार ने कुछ अपराधियों को संरक्षण देकर उनको पाला पोसा है, वो अब तोड़ना है। हमारा काम अभी जो मर्डर हुआ उसको सबसे पहले तो इतनी जल्दी रातों रात उसको गिरफ्तार कर दिया गया, और दूसरी बात इनके और नेक्सस को तोड़ना, तीसरी इनको उचित सजा मिला, ये हमें देखना है। Thank you so much. So yes, viewers, that was Dr. Anil Goel, who is also the MLA of this constituency, and he spoke exclusively to us about the incident that has happened at the national capital itself. This is me, Brian Anthony Thomas, signing off with camera person Ankush for NewsX Delhi. Viewers, now let's shift our focus to more developments. The Jammu and Kashmir Police has called for a coordination meeting on security arrangements regarding the Amarnath Yatra today. The Director General of Jammu and Kashmir Police, Nalin Prabhat, will chair the meeting on security assessment. Indian Army, CRPF, BSF, ITBP, CISF and SSB officials will be taking part in the meeting. Meeting will also be attended by intelligence agencies officials.
Ajay Jandyal is joining me with more updates on that. Now, this crucial meeting is going to take place, Ajay, as Jammu Kashmir police officials have called for a full coordination meeting ahead of this yatra that is going to be attended by more than thousands of the pilgrims, and as security is also very top concern. Right now, even the weather challenging has also become a big of a issue for the Jammu and Kashmir administration to handle. Share more details as to what is going to be now in the meeting discussed at the top priority. Going to be very challenging for the security forces, and that's why DGP Jammu Kashmir Police is going to chair a high-level meeting. Meeting has started, and senior officials of the different security agencies and the civil administration, they are the part of this meeting, and definitely to share the plan that how they are going to counter any threat and how they are prepared to deal with any kind of insurgency over there during the yatra. Health department people, civil administration people, BSF, Army, Police, CISF, CRPF, all the security agencies, their top officials are present over here, and to share that how they are going to secure the yatra, how they are going to tackle this weather conditions and other things. And this is definitely to ensure that post this Pahalgam attack, they have to ensure that Pakistan's nefarious plan of disturbing peace will not be succeeded. All right, Ajay, thank you very much with the latest updates that you're tracking at this point of time. Now, viewers, with that, more news and updates on the other side. Stay tuned. It's time to slip into a short break. For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.